So how state government works? We are aware about the different levels of government. There are different levels: national, then state level, and then local level. ठीक है? So this state level. So how the state level government works? So first we will discuss कि what is the state government. State government जो है वो क्या है and how it works. At state, in every state there is one legislative assembly. ठीक है? In every state there is one legislative assembly. Legislative assembly where all the representatives, this is a representative body. क्योंकि different level पे कौन government चला रहे हैं? हमारे representatives. In all various levels there are representatives. So legislative assembly, it is also one of the representative body at state level. And who are the members of this state legislative assembly? Different MLAs, they are the members of this state legislative assembly. So different MLAs, how these MLAs are being elected? These MLAs are being elected. Every state is divided into different constituencies. ठीक है? Different constituencies में divide कर दे. Different terms के meaning clear होने चाहिए. What is legislative assembly? Now who is MLA? MLA is a member of legislative assembly. इस legislative assembly का member. ठीक है? And what is constituency? Constituency is an area from where one member of this legislative is being elected. ठीक है? तो वो एरिया जहां से एक मेंबर चुना जाएगा, वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कितने मेंबर चुने जाएंगे? ओनली वन एमएलए. वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वन एमएलए. ठीक है? So one MLA will be elected from one constituency. What is constituency? It is an area from where all the voters, ठीक है, they choose their representatives by using their universal adult franchise. ठीक है? तो उस constituencies में कौन वोट करेंगे? All the people by using their universal adult franchise, उसको right को use करके वो क्या करेंगे? वोट करेंगे. तो एक पर्टिकुलर एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया. ठीक है? तो एक स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है. वहां से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमएलए को सिलेक्ट किया जाता है थ्रू द इलेक्शंस बाय यूजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. कितने साल के लिए? फॉर 5 years, है ना? 5 साल के लिए दैट मेंबर इज बीइंग इलेक्टेड. नाउ दीज एमएलएस, दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस legislative assembly. So after elections, all the members, ठीक है, they are elected by people. They have now become the members of this legislative assembly, and these MLAs, they will now make the government. अब इसी legislative assembly में से क्या बनेगी? Government बनेगी. Government at state level, यही MLAs बनाएंगे ना government. So गवर्नमेंट कैसे बनेगी? अब इस एमएलएस में से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में से इलेक्शन, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव कंटेस्टेड द इलेक्शंस. ठीक है? तो इसमें सपोज कर लिया हमने कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर. ठीक है? एंड टोटल सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली आर 200. ठीक है? टोटल 200 सीट्स आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली. ये एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा. सो अब 200 सीट में से फर्स्ट को कितनी सीट्स मिल गई? 110 फर्स्ट पार्टी को, सेकंड पार्टी को 50 सीट्स मिली, और इस थर्ड पार्टी को मे बी 40 मिल गई या 45. ठीक है? 40 मिल गई. ठीक है? तो इतनी सीट्स मिल गई. अब मोर देन हाफ सीट्स किसको मिली? इस पार्टी को. ठीक है? मोर देन हाफ. हाफ तो 100 था ना, 100 से ज्यादा सीट्स मिल गई. So which party has won more than half seats? So that party will become the ruling party. वो पार्टी क्या बन जाएगी? रूलिंग पार्टी. अब ये रूलिंग पार्टी के मेंबर्स किसके मेंबर है? लेजिस्लेटिव असेंबली में से ही गए हैं ना, इसके ही मेंबर थे.
ये सारे ये एमएलए ही तो हैं, ये एमएलए ही हैं जिन्होंने रूलिंग पार्टी बना ली। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में तीनों पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी भी है और ये दोनों बाकी अदर पार्टीज, दे हैव बिकम नाउ द ऑपोजिशन पार्टीज। और दूसरी पार्टीज क्या बन गई? ऑपोजिशन पार्टीज। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। हाउ एमएलएज आर बीइंग इलेक्टेड? These MLAs are the members of legislative assembly, and from this legislative assembly, ruling party has been, which is the ruling party? That party which has got more than half number of seats in the legislative assembly. वो पार्टी क्या बन गई? रूलिंग पार्टी। ठीक है, and from this ruling party, they will elect one of their member as chief minister. एक मेंबर को वो अपना चीफ मिनिस्टर बना लेंगे, and others as ministers of different departments, और वो मिनिस्टर्स होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ये आगे मिनिस्टर्स क्या होंगे? इंचार्ज। दीज मिनिस्टर्स विल बी द इंचार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, और अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो मिनिस्टर्स लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। हु इज द रूलिंग पार्टी, हु इज द ऑपोजिशन पार्टी? अब इसके ऑपोजिशन पार्टी भी इसी की मेंबर है ना? रूलिंग पार्टी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में है, ऑपोजिशन पार्टी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में है। नाउ दीज रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टीज, तो ये जितनी टर्म्स इसमें आ रही है सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। विच इज रूलिंग पार्टी, what is ruling party, what is majority party, और which party is ruling, which party is opposition party। ठीक है, then how this government works, अब ये गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे होती है? ठीक है, so all these legislative means working of government means working of legislative assembly, कि legislative assembly के काम कैसे कर रही है? तो इसमें legislative assembly क्या करती है? It make rules for the country। ठीक है, हमारी कंट्री के लिए क्या बना रही है? ये रूल्स बना रही है, लॉज बना रही है। ठीक है, रूल्स फॉर कंट्री। और इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी भी है, ऑपोजिशन पार्टी भी है। ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स दे आस्क क्वेश्चन टू द लेजिस्लेटिव रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स रूलिंग पार्टी को क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ऑल द डिस्कशंस एंड डिबेट्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज आल्सो बीइंग डन हियर। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ था, लेजिस्लेटिव डिफरेंट लेजिस्लेटिव एमएलए जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स की, एक पर्टिकुलर एरिया में ये प्रॉब्लम है, दूसरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो देयर इज डिस्कशन एंड डिबेट्स ओवर द ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो भी पब्लिक वर्क में, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, सब पे डिस्कशन डिबेट्स कहाँ होता है? इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और यही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर क्या करते हैं? They ask the question, they criticize the working of government. अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, of any decision is not properly implementing, ministers are implementing the decisions. ये जो भी decisions लिए गए, ठीक है, so these department they are implementing the decisions. वो डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं? decisions को implement कर रहे हैं। decisions कहाँ लिए गए थे? All the laws have been passed in this legislative assembly. यहाँ पे सारे discussions हुई, debates हुए, सारे decisions लिए गए, और यही different ministers उन decisions को क्या कर रहे हैं? आगे implement कर रहे हैं। अगर वो properly implement नहीं कर पा रहे तो उसकी criticism कहाँ होगा? legislative assembly में ही होगा। Questions पूछे जाएंगे, then ruling party has to answer, उनको answer भी करना पड़ेगा। ठीक है, so आपकी बुक में क्वेश्चन है कि how the working of departments, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्किंग ऑफ एमएलएस। अब एमएलएस क्या कर रहे हैं? एमएलएस डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये एमएलएस ही है ना सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो एमएलएस क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर आंसर कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस का। ठीक है, सो ऑल दीज वर्क्स आर एमएलएस डूइंग, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो क्या कर रहे हैं? They are implementing the decisions that has been taken in the legislative assembly. ठीक है, जो legislative assembly में decisions लिए गए हैं उनको ही implement कर रहे हैं। Clear? Yes बेटा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, कि
हाउ एमएलए इज बीइंग इलेक्टेड, हाउ एमएलए बिकम्स मिनिस्टर। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ एमएलए हैज बिकम मिनिस्टर, एमएलए मिनिस्टर कैसे बन गया। हाउ कि हमने तो एमएलए का इलेक्शन हुआ था, मिनिस्टर का इलेक्शन तो नहीं हुआ था ना, तो एमएलए मिनिस्टर कैसे बन गया। रेज योर हैंड। यस अनमोल, हाँ जी बेटा ठीक बोल रहे हो, बोलो। हाँ जी यस रूलिंग पार्टी। अब ये एमएलए क्या है, व्हेन दीज एमएलए दे बिकम द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, अगर तो वो रूलिंग पार्टी के मेंबर है, if the MLA that is a member of ruling party, so from that ruling party ministers are being elected। तो अगर तो वो MLA रूलिंग पार्टी के हैं और हो सकता है कि वही MLA मिनिस्टर भी इलेक्ट हो जाए, लीडर उनको एज ए मिनिस्टर इलेक्ट कर ले, तो वही MLA क्या बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा। क्लियर। सो इफ MLA the party which has got maximum seat, that party is the ruling party. So if that MLA is a member of ruling party, so then any MLA can be made as minister by the leader of that party, leader and the chief minister. Okay, so first chief minister is made by the leader, whosoever is the leader of ruling party, that is made the chief minister, and that chief minister select other ministers from his ruling party. So ruling party is the member of legislative assembly. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यस बेटा, एनी डाउट टिल नाउ, यहां तक कोई डाउट है। सो अब इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, जो ये मिनिस्टर्स हैं, दीज मिनिस्टर्स आर द इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये मिनिस्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी इंचार्ज हैं। डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं। यस, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क ऑफ MLAs and work of the government? What is the difference? Now tell me, what is the difference between work of MLA and work of government? हाँ जी, क्वेश्चन क्या था हमारा कि वर्किंग ऑफ दीज MLAs एंड वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट, हाउ द वर्किंग इज डिफरेंट। ठीक है, आपको हमने जो डिफरेंस पढ़ा है हम तो वही बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दीज MLAs? They take decisions, they discuss debates on the different important matters, they can ask questions, and the ruling party members, they have to answer the questions. ठीक है, this is the work of different MLAs. And government departments, they are, every minister is in charge of one particular government department and that implements the decisions. और जो decisions यहाँ लिए गए थे after debates, discussion, जो भी decision लिए गए, so that decisions has been implemented by these government departments. ठीक है, तो उन डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो डिफरेंट डिसीजंस थे वो इम्प्लीमेंट किए गए। सो अब इसमें जो स्टार्टिंग में आपके जो एग्जांपल्स दिए गए हैं और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हिमाचल प्रदेश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल जो हमने बुक में दिया गया है, तो वो भी आपने एक बार जरूर गो थ्रू करना है। ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल प्रदेश में डिवाइड की गई हैं। ठीक है, ये भी एक बार आपने कर लेना है। सो एनी अदर इसमें से डाउट? ठीक है, सो दीज ऑल आर द पॉइंट that has been explained in this topic. ठीक है, so now you have to revise this topic. Yes.